햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. Yes, sir. 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴. 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘 날씨 먼저 확인해. 우산을 챙겨야 할지. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나 참 다행인 거야. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 내게 마지막 사랑이라면 항상 곁에 있을게. 다가가서 말을 할 거야. 널 사랑한다고. 언제까지나 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴. 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘
날씨 먼저 확인해 우산을 챙겨야 할지 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나 참 다행인 거야. 매일 난 감사하죠 그대가 곁에 있어서. 언제나 오늘 갓길기도 해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 내게 마지막 사랑이라면 항상 곁에 있을게. 다가가서 말을 할 거야. 널 사랑한다고. 언제까지나 매일 난 감사하죠 그대가 곁에 있어서. 언제나 오늘 곁길기도 해요. 그대와 함께 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다. 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다네가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일 난 감사하죠 그대가 곁에 있어서. 언제나 오늘 갓길기도 해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 두근거리는 가슴이. Well, Uday Shankarji and me have been very, very old friends, and both our kids, Amal Malik and Bapani, also are now working together. They have been very close working associates, and it's an honor to be here at the exhibition being held by Uday Shankar Paniji. And what paintings I'm seeing today is actually so inspiring to know that an artist can have so many expressions to his thoughts through his brush. So there is so much variety to look for. That's what I was explaining to Weber also. Okay, you cannot define his art form. You cannot define it is one singular form of painting which he is doing. So there is some are abstract, some are with the nature, some are bringing traditions and religions alive, and some are bringing the ethos of Indian culture, and some are really global, international, because one of the paintings which he has made of Gandhiji looks like, actually I'm seeing a Van Gogh, and it is very, very inspiring to see that his talent is finding its way. तो उनका जो expression है अपने ब्रश के द्वारा, अपनी पेंटिंग के द्वारा, वो बिल्कुल एविडेंट हो रहा है कि हम इसे देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं. बिकॉज मैं समझता हूँ हर आर्टिस्ट जो होता है वो संगीत में अपने गीतों को लिखता है या फिर होता है संगीतकार उसे धुन देता है, और एक पेंटर जो होता है वो अपनी काल्पनिक, अपनी कल्पना को, अपने एक्सप्रेशन को कैनवस पे उतारता है. इट्स रियली मैजिकल. बिकॉज वो इन्होंने, जैसे मैं आया तो ये खुद भी मुझसे कह रहे थे कि मुझे एक पेंटिंग ख़त्म होने के बाद ये यकीन नहीं होता ये मैंने बनाई है या मुझसे बन गई, क्योंकि ये एक इनोसेंस होती है एक आर्टिस्ट की, एक सिंप्लिसिटी होती है कि अपने ही क्रिएशन से इंसान को ऐसा लगने लगता है
you know, that something great is happening, something magical is happening. So, hi friends, this is Tabu Malik here. I'm very excited to be at this exhibition of Uday Shankar Paniji of his beautiful paintings, and I'm looking forward for all of you for the next 4 days, 16th, 17th, 18th, 19th, till 20th, to come watch the paintings and take them home, because there's going to be the future investment. It will be a part of your art collection. Thank you very much. यहाँ I would like to add, you see, there are some paintings which I showed to Dabu ji कि मेरी 1970s की painting है, before I got into films. And after joining films, I never had the time for painting, you know. I got involved with the bigger canvas, cinema. Or back into painting at this stage is after realization of the magic of cinema. What I'm trying to create is moments, mood, emotions create करने की कोशिश कर रहा हूँ. But with every painting you love. Sure, I'm growing, and thanks to my friends and my children, you know, they are my best critics, and they keep telling me. I mean, like अभी पीछे painting मैंने की, my elder daughter, she saw and she said, "Dad, throw it away, make another one." तो मैं समझ गया. मैं immediately I follow whatever they tell me. Especially Vaibhav is so correct in his judgment. No? तो मैंने इमीडिएटली दूसरी पेंटिंग बना के की. शी सेड नाउ इट्स ओके. तो दे आर गुड बाउंसिंग मोड एंड दे अंडरस्टैंड यू, एंड ऑब्वियसली दे आर जेन्युइन एडमायरर्स ऑफ योर. दे वांट यू टू डू वेल, बट फ्रैंक ओपिनियन मिलती है. मैं सोचता हूँ बड़ी फिल्म बनाई है, यू नो, आई मेक अ गुड एड फिल्म और ग्रेट डॉक्यूमेंट्री, ग्रेट फिल्म. घर जाता हूँ तो फिर वो गालियाँ पड़ती हैं, क्या डैडी क्या बनाते हो एड फिल्म, वही जिंगल वाले बना दे रहे, यू नो, डू समथिंग एल्स. तो मैं उनको क्या बताऊं, डैडी को बजट नहीं मिलता तो क्या करें. Ajay, anyway, this is something which I want to share, that all artists, you know, how Uday Shankar ji is speaking is exactly what I feel at home with my children. We all face the same. But I'll tell you one thing, we have only just begun. Yeah. This is going to be a लाइफ तो अभी शुरू हुई है. star moment for you and me both, okay? All your paintings are mind-boggling. You look it from my point of view, they are extraordinary, and it can be compared to any of the top painters of this country, okay? It's all about how we pursue our art and how we value our art. बच्चे बोलेंगे, बच्चों का अपना नजरिया होगा, लेकिन you are a legend, okay? So this is Uday Shankar Pani, and please don't miss this exhibition which is happening here. And which address is this? हाँ? क्रेस कासा 5E. हाँ बोलिए. लखपुरा. क्रेस कासा 5E, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट, Andheri West, Mumbai. Please Link come Road. and check the exhibition. Thank you. थैंक यू. लिंक रोड, जहाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री रहती है हमारी. सो ये तो बचपन से ही इज माय लिटरली स्टार्टअप भावना, एंड हम इनके घर में ही आधे पले हैं. तो मेरे लिए तो इट्स लाइक अ फैमिली इवेंट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. आई एम सो हैप्पी व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट दिस. इनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, फिल्म्स बना रहे हैं, टीवी. इनफैक्ट माई मदर इज़ वर्कड फॉर हिम. तो हमारा एसोसिएशन जस्ट ऊपर ये क्या बोलते हैं, वी नॉट जस्ट मेट थ्रू इन द इंडस्ट्री, बट हमारा घर जैसे संबंध है. बट हमने काम भी किया, मेरी मम्मी ने काम किया है इनके साथ, और इनका काम मैंने हमेशा देखा है बचपन से. इन्होंने हमें बहुत सिखाया है बचपन से. जब ये काम पे जाते थे, हम इनको देखते थे, मी एंड माई फ्रेंड पर्सन, इनसे सवाल पूछते थे कि ये डायरेक्टर क्या है, ये क्या है, वो क्या. तो ये हमको बहुत ज्ञान देते थे इसको. तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा रिश्ता बन गया. बट आई डिडंट नो दिस साइड ऑफ हिस. ये मुझे पता था ही करते हैं, मैंने कभी कभी इनकी पेंटिंग देखी थी, बट इस लेवल पे करते हैं ये आज मैं देखी इतनी खुश हूँ. एंड आई डोंट नो, मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. फ्रॉम फिल्म मेकिंग टू यू नो शिफ्टिंग टू दिस पार्ट एज वेल. एंड वो विजन इनका इतना सुंदर है हमेशा से, वो यहाँ आज इन्होंने बखूबी ड्रॉ करके दिखा दिया कि दिस इज़ मी. सो इट्स लाइक, बट ये बहुत क्या कह सकते हैं, ये हर किसी में होता नहीं ना. आई आस्क्ड हिम कि आपके बच्चों ने ये पिकअप किया आपसे, तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत मे बी, बट ये जो इनके अंदर है और इस लेवल का है, ये देखिए मैं बहुत आई एम सो प्राउड कि क्या क्या है इनके अंदर. अब कुछ और भी है तो बता दीजिए अभी. एक अभी क्या होता है कि एज यू ग्रो ओल्ड, जी, आई कैन बी आल्सो,
ये पेंटिंग डज लॉट ऑफ गुड टू यू इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग डिमेंशन एंड योर कंट्रोल ऑफ योर फिंगर्स हैंड बॉडी पार्ट्स एंड माइंड. पेंटिंग क्या हो रहा है कि आप अच्छे विजुअल और अच्छे कलर्स आपके दिमाग में आते हैं. सो इट डज लॉट ऑफ गुड टू यू, टू योर ब्रेन एंड टू योर बॉडी एंड एट दिस एज. अभी इसके बाद देखिए मेरा तो ये है कि एक पागलपन है. एक सस्पेंस बनाता हूँ, फिल्म बनाता हूँ, उसके बाद लव स्टोरी बनाता हूँ, फिर फैमिली ड्रामा बनाता हूँ, फिर माइथोलॉजी बनाना शुरू कर दिया तो माइथोलॉजी बनाता रहा. मेरा है कि वैरायटी चाहिए. तो वैरायटी हेल्प्स मी टू पेंट ऑन डिफरेंट थीम्स. But my next will be next press conference which अपना नंदिनी को मैं बोलने वाला हूँ to help me is my books. तो अभी एक किताब अभी लगभग 16 तारीख तक मेरी रेडी हो जाएगी. वो राइटर ने थोड़ा जो कॉपीराइट कर रहा है उसने थोड़ा लेट कर दिया एंड ही कुड नॉट कंप्लीट द बुक. तो अभी वो मेरी 4 किताबें आ रही हैं और 5वीं किताब है ऑन फिल्म प्रोडक्शन, जो कोई सीरियसली लेता ही नहीं हिंदुस्तान में. क्या बात है. और क्या है कि इट इज़ नॉट मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी क्रिएटिव. क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द डायरेक्टर, इफ़ यू डोंट नो डायरेक्शन, आप क्या करोगे? अब उसकी तरह सोचना पड़ता है आपको डायरेक्टर का. तो वो कि ग्लोबल सिस्टम्स क्या हैं और हम लोग कितने आज पीछे हैं, वो मेरी किताब के अंदर आ रहा है. और उसके बाद एक 6ठी किताब है ऑन माई पोइट्री. वो मेरे को बताया था ना, निकलेगा अंदर से और कुछ निकल रहा है. पोइम्स जो मेरे अंदर है, मतलब इतना लाइफ में जो अभी किया है, तो वो जब लाइनों में डालते हैं हम लोग, विच इज़ अ मैसेज फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन. तो दैट इज समथिंग अगेन आई एम एंजॉइंग. लाइफ इज ब्यूटीफुल. It is indeed, especially when you look at such. और इसके साथ जो श्रद्धा, सच ए टैलेंटेड फैमिली है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. इसकी बहन भी इतनी अच्छी सिंगर है, ये अच्छी सिंगर है, इसकी मदर बहुत टैलेंटेड है, डैडी इज ए वेरी टैलेंटेड. पंडित फैमिली, पंडित जसराज फैमिली क्या बताइए इनका. तो ये वो टैलेंटेड फैमिली है. इससे मिलके बहुत अच्छा लगता है. ये यू मीट टैलेंटेड चिल्ड्रन. तो सर एनीवे दैट इज इट. आप बताइए सर कुछ. दादा क्या कहें. He's a versatile personality. We have just heard him talking, and there is so much to learn from people like you. आपने कहा about writing, आपने कहा about poetry. इतनी चीज़ें एक अंडर वन बैनर. दादा आप सलाम करता हूँ, आप एक इतने बड़े फनकार हैं. इट्स अ प्रिविलेज, अ प्लेजर मीटिंग हिम टुडे. मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं इनके साथ कभी कोई काम कर पाया. But yeah, we look forward to do something or the other. My pleasure sir. और मेरा अभी नेक्स्ट है, जनवरी में मैं दुबई जा रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल ऑफ अ फिल्म स्कूल. Oh wow. Now that's what, you know. वो 15, लेकिन उनको मैंने बोला मैं महीने के 15 दिन दूंगा आपको. तो 15 दिन दुबई, 15 दिन बम्बई रहेगा. ये अभी नेक्स्ट. But great, Dada. Every brush, every stroke matters a lot. Absolutely. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो एक फील फैक्टर, एक दादा इसमें कंसोल्ड माइंड चाहिए, शांत दिमाग चाहिए. सर देखिए, क्रिएटिव होना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन डिसिप्लिन्ड क्रिएटिव होना दैट इज द चैलेंज. वो आप है ना दादा. बिल्कुल. वो आर्मी, वो तो मैं आर्मी में जा नहीं सका तो मूछें बना दी आर्मी वालों की, वो कर दी मैंने. बट मैंने हर जो भी कुछ किया, पेंटिंग की है या किताब लिखी है या फिल्म बनाई है, माई अप्रोच ऑलवेज हैज बीन वेरी आर्मी लाइफ. वेरी आर्मी लाइफ. मेरी लाइफ पूरी घड़ी के सामने. वो क्रिकेट मैच हम रात को देखते हैं, वनडे क्रिकेट, तो पता लगा इंडिया की बैटिंग आ रही है, वो कर मेरा 9:30 बजे मुझे सोना ही है. वो बैटिंग वो सुबह देखेंगे हम लोग. That's what, you know, you look at दादा, इनको देख के अक्षय कुमार जी की याद आती है. और इनका डिसिप्लिन इनके काम में दिखता है, इनके काम में भी दिखता है इनका डिसिप्लिन. वो रिफ्लेक्शन होता है आपकी पर्सनालिटी का. नहीं, वो आर्टिस्ट होना आसान है, क्रिएटिव होना आसान है, बट व्हाट इज वेरी इम्पोर्टेंट इज टू मिक्स डिसिप्लिन इन विथ योर क्रिएटिविटी. एब्सोल्युटली. मैम कोई गाना हो जाए यहाँ पे, याद आ रहा है. अरे ठीक है. मेरा ये बरेली की बर्फी का जो गाना है आपने सुना है, बरेली वाली. संगम नहीं है, ये टैलेंटेड लोगों का संगम है. टुडे इज, यू नो, आई एम वेरी हैप्पी दैट so many talented people are coming and
and saying nice things about my painting, and that is encouragement for me. मुझे जोश आ रहा है भाई और कुछ करूँगा नहीं। अरे अभी No, आपकी we look forward. किताबों का इंतजार है अब जब वो किताब yes, एक तो किताब रेडी हो गई है, दूसरा और एक किताब मैं लिख रहा हूँ, हाँ वो लिखूंगा जस्ट अ वीक बिफोर आई डाई। वो किताब होगी द ग्रेट स्कैंडल्स ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। Oh, yeah. That everyone needs to know so that nobody will ever sabotage your career after that. You won't be there. वो जिस दिन मैंने लिख ली, एक वीक में मेरे ऊपर अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा। Exactly. कि जितने बड़े बड़े हमारे हैं ना, पद्मश्री, पद्म रत्न, ये इनके कारनामे जो हैं मेरे पास, अरे लिखे हैं, वो किताब में डालने वाला हूँ मैं। Super.